पिछली बार हम परेशान थे कि धूप बहुत थी, और इस बार डर लगा है कि बारिश ना आ जाए। अब आई, ज़्यादा आई, कम आई। देखो मौसम का कमाल। और इसी मौसम के कमाल से इतने सारे फूल यहाँ पर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और ये इस तरह का कार्यक्रम करना भी अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की अच्छी प्रैक्टिसेस को बधाई देता हूँ। This event provides a unique platform for showing the university's commitment to environmental consciousness, horticulture excellence, aesthetic appreciation, and compassion, and understanding of existence of other species, plants, including human beings. That's why when the concept note was given to me by Professor Rupam Kapoor, I was going through that concept note and trying to understand the various activities. Then I was impressed with the theme of the flower show, because theme is what? The theme of the flower show is very relevant, important, significant. And two words which inspired me: flora and fabric. And Professor Shiprakash also said they have related these two words, flora and fabric. They are related and deeply woven in our heritage. And we have just seen the colors of India, colors of various states, and colors of handloom. I would like to congratulate all my dear daughters for the same. So whenever we talk about the flora and fabric, natural plants come in our mind. Natural plants like cotton, jute, flax, sun, husk, all originates from plants. And then second is the colors, different colors, traditional dyes, leaves, flowers, roots of plants such as indigo, alkanate, madder root, saffron, turmeric. But you know, the combination of these two things, one is the fabric, natural fabric from plants, and then different dyes, colors, they create vibrant handloom textile for centuries. The ecosystem, eco-friendly nature of handloom aligns perfectly with our commitment to sustainability and biodiversity. That's why we want to promote, Government of India also promoting through different initiatives, this climate-friendly handloom textile will accelerate the economic growth of our country, because in the theme also we are talking about Viksit Bharat. And for Viksit Bharat, we need accelerated growth rate. And this acceleration of growth rate, this sector, handloom sector, can contribute, because this sector was contributing in the past also in the growth of the country. Prime Minister has rightly said, Khadi for nation, Khadi for passion, Khadi for fashion, and Khadi for transformation. And now this vision not only supports artisans but also integrates sustainability in our economic growth. Worldwide, people are saying now that India should focus on sustainability. Yes, sustainability is important, but you know, we have to accelerate growth rate with sustainability, and this is an area which is the true example of growth and sustainability. So I would like to thank Garden Committee for choosing this theme, which will influence all for embracing responsibility, preserving culture, and promoting India's green future. Handloom sector provides livelihood to millions of artisans, particularly in rural India, while reviving traditional weaving techniques. As I am told, good number of weavers are here. They have experience for 20 years, 30 years, 40 years. So we will get an opportunity to interact with them. So by embracing handloom, we empower women, promoting rural industries, and contribute to eco-friendly practices. And I just want to tell you, in the handloom sector, 72% are women. So it's an area, if that area is promoted, we are empowering the women power of our country.
India has rich tradition of production by masses. You know, when we see the ancient India, our focus was production by masses, not production for masses. It means what? There was a focus of small scale industries. People were focusing, and after that it was exported to different countries. So Indian handloom industry has witnessed a remarkable transformation in the last 10 years. I would like to quote the turnover. 30,000 crore industry, now it has become to 1,30,000 crore. So imagine what has happened in last 10 years with handloom with a proper focus by the Government of India. Global demand of Indian hand woven fabric is on the rise due to exceptional quality. We can see, we have just seen the exceptional quality of hand woven fabric. Here the concept is very simple. Concept is what? Farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, and fashion to foreign. This is the entire value chain. So our focus is from farm to foreign. We should export, and we should focus on the export. Why I am saying this? You know, when these Britishers came to India, they had not seen cotton. First time when they came to India, they saw cotton, and one of the Britisher has written in his book that these Indians are very clever. The wool which we are getting from sheep, they are growing in plants. The wool which we are getting from sheep, they are growing in plants. They had not seen, but you know, they took that opportunity. They took that opportunity, and within couple of decades, Manchester became the textile hub of the world. Although we were the hub, but we could not because of the administrative difficulties which we were facing in those days, and rest of the history what had happened. आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा ढाका की मलमल. बहुत लोगों ने सुना होगा ढाका की मलमल. कभी इस धरती का सबसे कीमती कपड़ा था वो. बहुत पैसे वाले लोग, राजा उसको पहनते थे, मंदिरों में इस्तेमाल होता था. अचानक ये ब्रिटिश रूल जब आया, ब्रिटिश इंडिया आया, तो गायब क्यों हो गया ये? और इसको ढाका की मलमल ही क्यों बोलते थे? भारत की मलमल क्यों नहीं बोलते थे? दिल्ली की मलमल क्यों नहीं बोलते थे? महाराष्ट्र की मलमल क्यों नहीं बोलते थे? इसको ढाका की मलमल ही बोलते थे. और ऐसा माना जाता है कि 300 फीट लंबे कपड़े को इतना मुलायम होता था कि अंगूठी में से निकल जाता था. और भारत उसका अकेला देश था जो एक्सपोर्ट करता था, और एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारा जीडीपी का मलमल के कपड़े से होता था. संसार में किसी को भी अच्छा कपड़ा चाहिए तो वो भारत से ही होता था, और शायद इसी कारण से इतने सारे ट्रेडर्स भारत में आए. इसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था इसका. तो मैंने कहा ढाका का मलमल ही क्यों? इसलिए अब तो खैर हमारे पास ढाका भी नहीं रहा, मलमल की तो क्या बात करें. लेकिन फिर भी वहाँ ढाका के पास, ढाका से जो उस समय बंगाल था हमारा, एक नदी निकलती है मेघना. उस मेघना नदी के किनारे एक खास तरह की कपास का उत्पादन होता था, कॉटन का उत्पादन होता था. अब आप सोचो कि कश्मीर से केसर लाकर दिल्ली में नहीं उगा सकते आप. केसर तो कश्मीर में ही उगेगा, वहीं पे आएगा, दिल्ली में नहीं हो सकता, क्योंकि वेदर कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट नहीं करती उसको. या आप आर्टिफिशियली वो कंडीशंस क्रिएट करें, आज तो साइंस बहुत ऊपर हो गई. तो वो जो मलमल था, खास तरह की कपास जो थी, वो ढाका के आसपास मेघना नदी के किनारे ही होती थी. और देखिए हाथ से बनाते थे, इतने अच्छे कारीगर थे, विश्व में जाती थी. तो अंग्रेजों ने सोचा ये तो इतना सारा व्यापार है. और उस समय मैं बताता हूँ, 1851 में उस मलमल की, एक गज मलमल की कीमत थी 50 से 400 पॉन्ड्स के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द मलमल. तो किया क्या इन्होंने कि आज मलमल ढाका तो क्या, कहीं भी विश्व में वो चीज़ मिली नहीं. एक बुक है गुड्स फ्रॉम द ईस्ट 1600 to 1800 ट्रेडिंग यूरेशिया. ये बुक एडिट करी मैक्सिनबर्ग विद फेलिसिया गॉटमैन एंड अदर्स. और उसमें लिखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इस प्रोसीजर को तोड़ना शुरू किया. सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि इतनी महंगी बिकती है, तो उन्होंने आर्टिस्ट को कहा कि हम, आर्टिसंस को कहा कि हम आपको, कारीगरों को कहा कि हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे,
आप अगर आप दिन में 10 फीट बनाते हो तो 20 फीट बनाइए, 25 फीट बनाइए, पहले तो वहाँ से शुरू हुए। और उसके बाद में कहा कि ये भी क्यों बनानी है इस तरह से, इस कॉटन की आप दूसरा कपास यूज़ कीजिए। क्वालिटी धीरे धीरे गिरी, क्योंकि उनको मैनचेस्टर की अपनी मशीन्स एस्टैब्लिश करनी थी, और ये एस्टैब्लिश होने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो प्रोडक्शन फॉर मासेस की जो बात करना वो करते थे। बाद में धक्के से मशीनें डाल दी गई यहाँ पे, रूल उनका था, पॉलिसी उनकी थी, राजा उनके थे। इसी कारण से हमेशा याद रखना कि देश कभी गुलाम नहीं होना चाहिए। अगर देश गुलाम होता है तो कई बार लोग सोचते हैं हमको क्या है, कोई राजा बन जाए हमको क्या है। अरे आप ही को फर्क पड़ता है, देश को फर्क पड़ता है, लोगों को फर्क पड़ता है। ब्रिटिशर्स ने स्ट्रैटेजी के तहत सारे कारीगर वो सब ने भुखमरी में मरे, किसी ने खेती करनी शुरू कर दी। स्ट्रैटेजिक सिस्टमैटिकली पूरी की पूरी इंडस्ट्री को तबाह किया ब्रिटिशर्स ने। और जो लोग इस बुक को पढ़ेंगे उनको और आइडिया लगेगा कि किस तरीके से कितने उद्योग धंधों को खराब किया इसमें। इसीलिए, पर आज तो चलो वो बात नहीं है। वी हैव सीन द प्रोग्रेस। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड National Handloom Day now is celebrated on August 7th every year to remember the launch of the Swadeshi movement in 1905. So 1905 and August 7th both are very, very important for us. That's why Government of India has decided to choose this, and PM said handloom can be a tool to fight poverty. Handloom can be a tool to fight poverty, just as Swadeshi movement was a tool in the struggle for India's freedom. और एक और बात, इतने सारे सुंदर पौधे हैं, फूल हैं, प्लांट्स तो केवल देने का काम करते हैं, फूल देने का काम करते हैं। तो हमको उनसे सबसे पहले तो यही सीखना चाहिए पेड़ों से कि ये केवल देते हैं, लेते कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छा दोहा है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भरवई, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती, और जो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए होता है, दूसरों के लिए करते हैं। इसीलिए दूसरों के हित में अपना हित सोचना, ये एक लेसन है जो कि हमें वनस्पतियों से मिलता है। और कभी इंसान को लगता है कि सब चीज़ तो जी आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। इसी कारण से कई बार जब मैं बात करता हूँ कि विंड एनर्जी की बात करता हूँ कि मैं तो उसके बहुत ही खिलाफ हूँ, विंड एनर्जी के, बहुत सारी बात। क्योंकि जब ये विंड एनर्जी, जब इसका पंखा चलता है, उसकी थ्रस्ट इतनी है कि कितने हज़ारों की तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स एक बार में मर जाते हैं। उसका जो पुल है, जो प्रेशर है, वो इतना ज़्यादा है। लेकिन इंसान को लगता है कि मेरे लिए बिजली है, मुझे अपना एसी चलाना है, मुझको ऐसा करना है, मुझको वैसा करना है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो बहुत छोटी हो गई। लेकिन भारत की संस्कृति में छोटी सोच नहीं थी। जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव अपने लिए नहीं है, ये सभी प्राणियों के लिए है, ये वनस्पतियों के लिए भी है, ये जानवरों के लिए भी है, सबके लिए है। तो ये जो भाव है, फ्लावर शो हम जो कर रहे हैं, ये भाव जगाने का काम है कि वी शुड ऑल्सो बी सेंसिटिव एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स द प्लांट्स, फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स। यही सीखना है हमें पेड़ों से, और यही सीखना है हमें वनस्पतियों से। लेकिन इंसान आसानी से ना सीखता नहीं है, इंसान आसानी से सीखता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं जो हूं ना, बस मेरे लिए सब कुछ है। ये जो सेल्फिश एटीट्यूड है, इसी कारण से आज ये क्लाइमेट का इशू, बहुत सारे इश्यूज आए हैं, मैं उस पर आज बात नहीं कर रहा। पर जब फूलों को देखते हैं तो वो खुश रहना सिखाते हैं, खुश करते हैं, और आप सबके अंदर, हमारे अंदर एक फील गुड हार्मोन्स को जनरेट करते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन। इसके लिए मेडिसिन डॉक्टर्स बोलते हैं। पर अगर आप फूलों के साथ आएंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, जंगल में घूम लेंगे, तो आपको शायद ऑटोमेटिकली फील गुड हार्मोन जनरेट होंगे, मेडिसिन की जरूरत शायद न पड़े। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू फीलिंग ऑफ प्लेजर, वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। तो फ्लावर शो हमें खुशी और उल्लास का वातावरण देता है, और इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि देखो, विकसित भारत में आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। अगर कंट्रीब्यूट करना है, एज ए एंटरप्रेन्योर आप करना चाहते हैं, बिजनेस पर्सन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और अभी मैं कल टेलीविज़न पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो असेंबली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो गया, जैसी उसकी दृष्टि थी वैसी उसको दिखा, जो देखना चाहता था उसको दिखा। आप में से बहुतों ने सुना होगा, गिद्धों को लाश दिखी,
भक्तों को भगवान दिखे, टूरिस्ट्स को अव्यवस्था दिखी, श्रद्धालुओं को व्यवस्था दिखी, और उन्होंने बहुत सारा बोला। तो बात यही है कि जो हमारा दृष्टिकोण है, हमें उसी से दुनिया देखने की आदत भी हो जाती है। इसलिए दृष्टिकोण पे काम करना चाहिए, दृष्टि पे काम करना चाहिए, तो संसार आपको वैसा ही लगेगा। क्योंकि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है, जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है। हमको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है। सो we have to contribute in the India's growth story. That should be our संकल्प। अपने अपने तरीके से, छोटा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी में। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो अब हमारे बच्चे हैं, आप सब अपनी तरह से अपना योगदान करेंगे, और हम इसको भी अचीव करेंगे कि हम भारत विल बी ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। लेकिन खुशहाल भी होंगे, खुश होंगे, और एक अच्छी दुनिया का हम एक एग्जाम्पल बने। और दिल्ली विश्वविद्यालय का ये जो कार्यक्रम है, ये एक उदाहरण है जो सभी को फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग करते भी होंगे। मैं इस कार्यक्रम के लिए गार्डन कमेटी को फिर से बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आप सब आए, आपका भी बहुत बहुत आभार।